Hello dear students, Assalamu alaikum. Hope you are fine. Stay at home and stay safe and enjoy the online lectures. I welcome all of you today over here with the greatness of new concept, and that is Darwin's theory of natural selection. Darwin's theory of natural selection. Darwin's theory of natural selection and ultimate formation of new species. Basically, it was Charles Darwin, an English naturalist, Charles Darwin, in 1859, he proposed a theory regarding the natural selection of individuals or selection of individuals on the natural by the nature and ultimate conversion of one species into a new species. यहाँ पे एक इंग्लिश नेचुरलिस्ट चार्ल्स डार्विन है, उसने अपनी थ्योरी को कुछ फैक्टर्स पे, कुछ ऐसे फैक्टर्स which are responsible for the formation of a new species within the nature, and these factors are enormous number. Factor number first, that is enormous fertility. Enormous fertility. Enormous fertility. Second was struggle for existence. Second was competition. Third is struggle for existence. Struggle for existence. Next is survival of the fittest. Survival of the fittest. And then variation and heredity. Variations and their inheritance pattern, heredity, which ultimately results the speciation, that is formation of new species. Speciation, formation of new species. Shabash. Today we are going to discuss about the Darwin's theory regarding how individuals are being selected by nature, how these individuals modify themselves during the course of their survival, how they reproduce and increase their number, how they start competing with each other, how they start struggling with each other for existence, for better existence, and how nature, how fittest and stronger individuals survive under the nature, and how these variations takes place, and then their inheritance pattern, which ultimately results in the formation of new species from the ancestral species. ठीक है, तो फर्स्ट कंसेप्ट जो यहाँ पे है, दैट इज एनॉर्मस फर्टिलिटी. एनॉर्मस फर्टिलिटी में डार्विन, अकॉर्डिंग टू डार्विन, यानी कि इंडिविजुअल्स जो है वो उनकी इनेट डिजायर है टू अंडरगो रिप्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि टू इंक्रीज देयर नंबर फॉर कंटिन्यूटी ऑफ रेस through a process, and that process is known as reproduction. यानी कि इंडिविजुअल्स जो किसी भी एनवायरमेंट में, किसी भी नेचुरल ज्योग्राफिकल रीजन में इंडिविजुअल्स है,
स्पीशी है, तो वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो रिप्रोडक्शन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी जो रेस है, उनका नस्ल जो है, उनकी स्पीशीज है, वो कंटिन्यू करे, प्रोजेनेशन यानी कि प्रोजेनी और प्रोजेनी, ठीक है। तो वो रिप्रोडक्शन करते हैं। दे हैव इनेट डिजायर टू अंडरगो रिप्रोडक्शन प्रोसेस। तो रिप्रोडक्शन रिजल्ट इज the increase in the number of individuals, increase in the number of individuals male or female। तो यहाँ पे individuals increase होते हैं किसी स्पीशीज के, दूसरी तरह की स्पीशीज पे उस वाले एनवायरमेंट में वो भी ऑटोमेटिकली रिप्रोडक्शन शो करती है, तो उससे नंबर इंक्रीज होता है। तो जब नंबर इंक्रीज होता है उससे क्या होता है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, यानी कि कैरिंग कैपेसिटी होती है एनवायरमेंट की, अपनी कांस्टेंट कैरिंग कैपेसिटी होती है फॉर स्पेस एंड न्यूट्रेंट्स। उनकी न्यूट्रेंट्स जो है, न्यूट्रेंट एनरिचमेंट उस एनवायरमेंट की पर्टिकुलर कांस्टेंट है, और स्पेस ऑफ द एनवायरमेंट इज कांस्टेंट। यहाँ पे रिप्रोडक्शन से जब नंबर इंक्रीज हुआ तो उससे क्या होगा, नेक्स्ट फिनोमिना विल इमर्ज आउट, नेक्स्ट फैक्टर विल हैपन, एंड दैट फैक्टर इज कंपटीशन, ठीक है। कंपटीशन, कंपटीशन का क्या मतलब है, यहां पे नंबर ऑफ इंक्रीज हो गए ना इंडिविजुअल्स, तो लेकिन फूड रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेस इज लिमिटेड देयर, this result is the next factor, next phenomena, that is competition. Competition will arise among the different, competition will arise among different individuals, between the individuals of the same species as well as the individuals of different species, ठीक है। तो individuals of the same species competition किस चीज के लिए, for food and shelter, ठीक है। तो ये competition दो तरह का arise होगा, यानी कि इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन एंड इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, इंटरस्पेसिफिक वन, ठीक है। दिस इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन इज the competition which occur among the members of the same species, यानी कि this occurs among the members of the same species, और ये वाला जो competition है occurs among the members of different species, different species के members में जो competition arise होगा that is interspecific, and members of the same species उसमें भी competition होगा and that is intraspecific. Intraspecific competition is more severe as compared to interspecific. Interspecific में different individuals है, different species के, उनके food resources, nature of the food जो है that is the different, that is why it is less severe, और इनका जो है nature of the food is same, ठीक है। तो इनका कंपटीशन बहुत ही सीवियर होता है इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन में, मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज का जो कंपटीशन है दैट इज मोर सीवियर। दिस कंपटीशन अमंग द स्पीशीज फॉर स्पेस एंड फूड result is the third phenomena, that is struggle for existence, that is struggle for existence। उसका क्या मतलब है struggle for existence? जब वो compete करते हैं फिर वो आपस में लड़ने लगते हैं, तो फिर जो stronger होते हैं, stronger वो जीत जाते हैं, they win, and weaker ones are rooted out, वो किल होते हैं स्ट्रगल में, rooted out from the population, ठीक है। तो ये जो स्ट्रॉन्गर होते हैं, बेसिकली ये स्ट्रॉन्गर क्यों होते हैं, उन्होंने वो एडाप्टेशन, वो मॉडिफिकेशंस अपने में लाई हुई होती है, तो उससे वो जीत जाते हैं, एंड दीज स्पीशीज आर बीइंग रेफर्ड एज फिटेस्ट स्पीशीज, यानी कि ये फिट है, फिटेस्ट, तो वो सर्वाइव करते हैं, फिटेस्ट, स्ट्रॉन्गर, विन एंड सर्वाइव। These are being, what we call it, survival of the fittest means nature ने उनको select किया, तो due to the adaptations and modifications they have brought in themselves, and they are now regarded as the fittest and they survive, while as the weaker ones are rooted out from the population, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जब कुछ इंडिविजुअल्स रिड्यूस होते हैं नंबर में, तो उससे होता है कि पॉपुलेशन साइज मेंटेन हो जाता है, ठीक है।
तो अब ये मॉडिफिकेशन जो अपने आप में लाते हैं स्ट्रगल के लिए, कंपटीशन के लिए, वो मॉडिफिकेशन जो है वो कैरेक्टर्स हैं, नए वेरिएशंस हैं। तो वेरिएशन के आने से क्या होता है, वेरिएशन के आने से स्ट्रगल के बाद हम कहते हैं कि स्ट्रगल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जिसने स्ट्रगल में जीत हासिल की है वो स्ट्रॉन्गर है, और वो यानी उसने सर्वाइव किया, और दैट इज बीइंग रिगार्डेड बाय द नेचर एज फिटेस्ट। ठीक है, उसके बाद बाकी रूट आउट हो गए हैं। उसके बाद क्या होता है, वेरिएशन एंड हेरिडिटी, वेरिएशंस एंड हेरिडिटी। उसका क्या मतलब है, जो यहाँ पे फिटेस्ट इंडिविजुअल्स है, जिन्होंने सर्वाइव किया है, सर्वाइव उन्होंने इसलिए किया हुआ है क्योंकि उन्होंने कुछ एडाप्टेशंस, मॉडिफिकेशंस अपने में लाई हुई थी ऑलरेडी। दीज वेरिएशंस इन द मॉडिफिकेशंस इन द फॉर्म ऑफ अ वेरिएशंस, वो वेरिएंट बन गया है। तो दीज वेरिएशंस जो है वो एक्युमुलेट होती है years over years over years, thousands of years, वो accumulation होती है उन characters की, उन variations की। तो वो फिर पास होते हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन बाय मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब ये वाले जो रिप्रोड्यूस करेंगे तो वो वेरिएशंस पास हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ अ जीनस प्रेजेंट इन द गैमेटिक सेल्स। ठीक है, तो वहां पे नए वेरिएंट्स जो बनेंगे, तो व्हेन टाइम विल कम this will lead the new phenomena, that is the phenomena of speciation, that is formation of new species from pre-existing ones। वो भी evolution है। speciation gives the mechanism, evolution is simply gives the indication that new species are formed from the pre-existing species। However, the phenomena of speciation gives the roadmap, gives the mechanism how this new species is formed from the pre-existing species। That is Charles Darwin's theory of natural selection। This was put forward by Charles Darwin in 1859। According to him, that certain individuals, certain individual का क्या है कि individuals which are surviving under the nature, they reproduce, then increase their number, they have innate capability, innate desire to produce the offsprings। वो रिप्रोडक्शन थ्रू से होता है। जब रिप्रोडक्शन वो करते हैं तो ऑफस्प्रिंग्स वो तैयार करते हैं, तो ऑफस्प्रिंग्स में क्या है, नंबर इंक्रीज हो जाता है पॉपुलेशन में। तो नेचुरली दिस पॉपुलेशन साइज इंक्रीजेस। व्हेन पॉपुलेशन साइज इंक्रीजेस, food resources are limited, space in the environment is limited, therefore these individuals so produced start competing for each other। ठीक है, for food and shelter process। तो उस कंपटीशन में दो तरह का कंपटीशन रेज होता है। एक तो है वो कंपटीशन दैट occurs among the members of the same species, that is intraspecific competition। Next competition is the competition which arises between the individuals of different species, and that is interspecific competition। interspecific competition में क्या होता है, interspecific competition में competition between the members of different species for space, for availability के लिए वो competition होता है। food के लिए वो नहीं होता है, वो availability of the space के लिए है। हाँ, तो उसमें तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन। तो इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन में क्या होता है, दैट इज द कंपटीशन फॉर बोथ स्पेस एज वेल एज फूड। इंट्रास्पेसिफिक competition that is competition between the members of the same species, वो that is more severe। क्यों, क्योंकि उनमें स्पेस भी सेम होती है, स्पेस का नेचर सेम होता है, और उसका जो है नेचर ऑफ द फूड जिस पे वो फीड करते हैं, यानी कि फीडिंग हैबिट इनका सेम होता है। अगर एक खाता है तो दूसरा डिप्राइव होगा, तो विद द रिजल्ट वो वीकर बन जाएगा, वो रूट आउट हो जाएगा, फिर अकॉर्डिंगली जो है वो एलिमिनेट आउट हो जाएगा पॉपुलेशन से। ठीक है, अब क्या है, जब कंपटीशन हो गया है इंट्रास्पेसिफिक एज वेल एज इंटरस्पेसिफिक एक दूसरे पे, उससे क्या होता है, जब ये कंपीट करना शुरू कर देते हैं, फिर लड़ाई होती है उनको आपस में, दैट इज स्ट्रगल स्टार्टस। यानी कि स्ट्रगल फॉर किस चीज के लिए, ताकि हर कोई इंडिविजुअल चाहता है कि मैं ही वो करूं, क्या मतलब सर्वाइव करूं, मैं ही मतलब ज्यादा देर तक सर्वाइव करूं। वो मतलब हर कोई चाहता है कि
ये मतलब रूट आउट नहीं, कोई भी इंडिविजुअल नहीं चाहता है कि वो रूट आउट हो जाएगी अपने पॉपुलेशन से, ठीक है। तो दैट रिजल्ट इज द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। जब वो स्ट्रगल करते हैं आपस में, उससे क्या होता है, जो वीकर होते हैं, वो रूट आउट होते हैं। रूट आउट मीन्स दीज आर एलिमिनेटेड, दे डाई ड्यूरिंग द स्ट्रगल, and these are not to be selected by nature. And on the other hand, we have the members which are stronger, and survive after struggle, due to the changes, due to the adaptations they have brought in themselves, ठीक है। तो उस changes से वो stronger होते हैं, वो and these species, stronger species which survive during the existence are being selected by nature. These are selected species, these are being selected by nature for survival, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इन जो selected species होते हैं, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट है वो सर्वाइव करता है, तो उसमें वो फिर अपने आप में मॉडिफिकेशन जो उन्होंने लाई होती है, वेरिएशन जो उन्होंने लाई होती है, तो उनमें क्या होता है, तो फिर वो वेरिएशंस एक्यूमुलेट होती है, सम अप होती है, एक्यूमुलेट, दिस वेरिएशंस एक्यूमुलेट years over years, generations over generations, thousands of years, years over years, ठीक है। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स वो सम अप होते हैं, फिर ये जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो वो सम अप हो, जब वो ट्रांसमिट होती है, हेरिडिटी यानी कि इनहेरिटेंस पैटर्न ट्रांसमिट होती है, वो कैरेक्टर्स टू ऑफ स्प्रिंग्स। जब ऑफ स्प्रिंग्स में वो ट्रांसमिट होती है तो नया ऑफ स्प्रिंग एक नया वेरिएंट के मतलब फिनोकॉपी में वो रेज होता है, एंड दैट स्पीशीज, दैट रिजल्ट इज अल्टीमेटली द रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। दैट इज इट, थैंक यू।